ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان اشفاق تاندرے اس پروگرام کا ایک نیا شمارہ لے کے پچھلے 24 گھنٹوں میں پارلیمانی انتخابات کو لے کے ہندوستان میں بہت کچھ بدلاؤ دیکھنے کو ملا ہے. وہی کشمیر میں بھی چونکا دینے والے نتائج سامنے آئے. 2 سابق وزرائے اعلیٰ محبوبہ مفتی اور عمر عبداللہ یہ الیکشن ہار چکے ہیں اور ایک نیا چہرہ ابھر کے سامنے آیا ہے انجینئر رشید کی صورت میں. انجینئر رشید نے بارہمولہ سے تقریباً 4 لاکھ سے زیادہ ووٹ لے کے اپنی جیت درج کرائی ہے. اس کے کیا محرکات ہیں؟ لوگوں نے ایسے اس پیٹرن پہ کیوں ووٹ ڈالے؟ کیا وجہیں رہیں؟ لوگوں نے کیا سوچ کے جو ہے پولنگ بوتھس کا رخ کیا؟ یہ سب جاننے کے لیے میرے ساتھ آج کچھ مہمان جڑے ہیں. ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہیں اس کی اور جو ٹیک اویز ہیں، جو نتائج سامنے آئے ان کے کیا ٹیک اویز ہیں. انجینئر رشید اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جیل میں تہاڑ جیل میں 2019 سے بند پڑے ہیں. ان کے خلاف ایک مبینہ طور پر UAPA کیس میں وہ بند ہے تہاڑ جیل میں. تو اگر عمر عبداللہ کا ہارنا دیکھے تو یہ ایک پرسپیکٹو میں دیکھنا ہوگا کہ جب انجینئر رشید نے اپنا اناؤنس کیا، ان کے بیٹوں نے اناؤنس کیا کہ ہم الیکشن لڑ رہے ہیں، تو اس وقت کسی نے ان کو سیریس نہیں لیا تھا. لیکن ایک مہینے کے اندر جس طرح سے انہوں نے اپنی کمپین رن کی، جس طرح سے انہوں نے ایک سپورٹ بیس اکراس آل دی 18 اسمبلی سیگمنٹس آف بارہمولہ میں جنریٹ کیا، تو دیٹ واز این امیزنگ. اگر ہم وہ ایک ویو جو تھی انجینئر رشید کی، اگر کوئی بھی بڑا لیڈر ہوتا تو مجھے نہیں لگتا کہ انجینئر رشید کے سامنے اس وقت وہ ٹک سکتا تھا. جہاں تک بارہمولہ کنسٹیچوئنسی کا تعلق ہے، ایک بہت ہی سرپرائزنگ، میں کہتا ہوں کہ ایک شاکنگ رزلٹ عمر عبداللہ کے لیے، اور ساتھ ہی سجاد لون پیپلز کانفرنس جنہوں نے ایک ریلی کے دوران ہی اپنی جیت کا اعلان کیا تھا، تو ان کے لیے ایک ریالٹی چیک کہ واٹس ایپ پر یا جو پولیٹیکل ریٹرک ہے اور جو اٹیک ہے اور جس لینگویج کو انہوں نے امپلائی کیا اس پولیٹیکل ریٹرک میں، اس سے ووٹ نہیں جیتے جا سکتے. اور جہاں تک انجینئر رشید کی وکٹری کا تعلق ہے، اس میں ایک ایمپتھی، کمپیشن اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک ایموشنل نیریٹو تھا جو ابرار اور ان کے دوسرے بیٹے نے بالکل 15-20 دنوں کے دوران ہی وہ سارا ہوا اور بالکل یہ الیکشن ٹرن ہو گیا وہاں. اگر ہم بارہمولہ کی بات کریں تو ہم دیکھیں گے، ہم نے دیکھا کہ جہاں عمر عبداللہ صاحب نے بڑی باتیں کی، آرٹیکل 370 کے لحاظ سے کے حوالے سے بات کی، شناخت کے حوالے سے بات کی، اسٹیٹ ہوڈ یا پھر ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے بات کی، وہاں انجینئر رشید صاحب کی جو کمپین تھی وہ بالکل ان چیزوں سے ہٹ کے تھی. خالی ایک اپیل تھی وہاں پر ان کے بچوں کی طرف سے کہ آپ ہمیں ووٹ دیجیے تاکہ ہم اپنے والد صاحب کو جیل سے باہر نکالیں. اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کو لوگوں نے اپنے ساتھ آئیڈینٹیفائی کیا. One important aspect of Mr. Engineer Rashid's victory is basically about the scope of appeal, the breadth of the appeal, his emotional political campaign led by his 2 sons actually cut across the voters in Baramulla Lok Sabha constituency. The fact of the matter is that after 1987 rigging, which is basically considered a watershed moment in the electoral history of Jammu and Kashmir, mainstream politics in Jammu and Kashmir has always been a crisis, has always had a crisis of legitimacy. But given the image Engineer Rashid has cultivated through his non-conformist type of politics, he has been always an unconventional politician in that sense. And the fact that he has been in jail since 2019, that actually enabled basically his supporters, or what we call his foot soldiers, to basically cater to an audience, a section of population in Kashmir Valley which actually had never voted in the first place, or actually didn't believe in voting. So in a sense, they actually identified him with him in a sense that they felt that he's in jail and he has been a very firebrand type of a leader. And at the same time, the other options they had in the contest, for example, National Conference Vice President Mr. Umar Abdullah, or for that matter, Mr. Sajad Ghani Lone of People's Conference, the choice for this section of voters who actually never voted in the first place was pretty much obvious. Because they decided to side with Engineer Rashid and vote for him because they wanted to give a statement that even if they are voting in the Lok Sabha elections, the message they want to convey is that they are not
happy or they are not content with the way a Kashmiri is being treated in a jail since 2009. बेटे थे, उनने जो एक सेपरेट सेंटिमेंट है उसको टैप करने की कोशिश की, तो लोग बाहर आए, जो भी फर्स्ट टाइम वोटर्स थे तो वो बाहर आए, उन्हें ये वोट इंजीनियर रशीद के हक में डाला कि जब अगर हम इंजीनियर रशीद के जो जलसे थे या रोड शो थे उनमें नारों की बात करें तो वहाँ नारे ही लगते थे कि तिहाड़ का बदला जेल से, जुल्म का, तिहाड़ का बदला वोट से, जुल्म का बदला वोट से। तो ये कुछ ऐसी बातें थी जिनसे लोगों ने अपने आप को आइडेंटिफाई किया। तो वो जो भी बाइकआउट वोट था, क्योंकि इंजीनियर रशीद की कैंपेन में वो खुल के कहते थे कि हमें पता है कि आप बाइकआउट वाले हो, लेकिन आप इस बार आगे आ जाओ, बाइकआउट को छोड़ के आगे आ जाओ, वोट डालो ताकि हमारे वालिद साहब को छुड़ाया जा सके। तो वो जो बाइकआउट वोट था, जो जब हमने देखा कि 35 से जो जंप हुआ 58% तक, जो वो वोट है वो खासा हिस्सा इंजीनियर रशीद को है। तो वही एक वजह मुझे लगती है कि वो बार अक्सर से उमर अब्दुल्ला को हराने में कामयाब हुए। रूहुल्लाह मेहदी जो श्रीनगर से जीते हैं, तो इसे मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत नहीं समझता हूँ, बल्कि रूहुल्लाह मेहदी की जीत समझता हूँ, उनके पॉलिटिकल नैरेटिव की जीत समझता हूँ, जो कंसिस्टेंट, बोल्ड, करेजियस और एक पॉइनेंट नैरेटिव उन्होंने रखा पिछले 5 साल में, ये उसकी जीत थी। तो मैंने कहा था कि पहले भी कि ये वहीद वर्सेस रूहुल्लाह जो है मेहदी कॉन्टेस्ट है, एनसी वर्सेस पीडीपी नहीं है। देखिए, दूसरा सेटबैक था पीडीपी के प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती का साउथ कश्मीर अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट से हारना। वैसे अगर उनका हारना देखें तो मुझे नहीं लगता था कि महबूबा मुफ्ती जो वहाँ अनंतनाग या राजौरी लोकसभा सीट से तो जो इलेक्शन लड़ रही थी, तो उनका जो उनकी पार्टी का ओवरऑल सिनारियो है 2019 के बाद, जब से उसके दर्जनों लीडर पार्टी छोड़ के भाग गए, जिन्होंने नई नई पार्टियां बनाई, तो उसके लिहाज से चूंकि अगर हम एक पिछले 1-2 महीने में जब से वो इंडिया अलायंस में थी, तो चूंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी एक ही अलायंस में थे, तो उन्होंने कोशिश की थी कि एक ही इकट्ठे हम इलेक्शन लड़े। लेकिन महबूबा मुफ्ती, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनको नहीं माना, तो फिर महबूबा मुफ्ती ने अल्टीमेटली ये फैसला लिया कि वो कंटेस्ट करेंगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट महबूबा मुफ्ती के लिए था कि पार्टी को जो एक सेटबैक ओवर लास्ट 5-6 ईयर्स, तो उस पार्टी को रिवाइव करना, कैडर को रिवाइव करना, अपनी बेस को रिवाइव करना। तो मुझे लगता है कि एक तो सेटबैक तो है महबूबा मुफ्ती के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि वो मतलब उस पोजीशन में है कि वो इस सीट को जीत सकती थी। जहाँ तक अनंतनाग राजौरी की सीट का ताल्लुक है, तो उसमें भी मियां अल्ताफ़ 5 लाख से ज़ायद वोट उन्हें हासिल हुए। तो उससे भी मुझे लगता है कि इसमें एक और मैसेजिंग है, वो ये है कि गुज्जर स्पीकिंग कम्युनिटी और कश्मीरी स्पीकिंग कम्युनिटी में एक वेज नज़र आ रहा है। और उसमें भी जो महबूबा मुफ्ती या उमर अब्दुल्ला और सजाद लोन की जो डिफ़ीट है, उनकी जो शिकस्त है, उसके जो पहलू हैं, उसका सबसे बड़ा पहलू ये है कि ये डायनास्टिक फैमिलीज़ और एरोगेंस भरी जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स ऑफ एरोगेंस के ख़िलाफ़ है। और जो एक पीडीपी ने जो एक अलायंस किया था बीजेपी के साथ 2015 में और उसे फिर रिन्यू किया था 2016 में, तो उसको अभी लोग लगता है वोटर्स नहीं भूले हैं। हालांकि जो है वहीद हार के बावजूद उनका एक नैरेटिव था कंसिस्टेंटली और उनको एक सिंपैथी वोट भी मिला। मुझे लगता है कि अगर हम पिछले 5 साल में देखें कि जिस तरह से पीडीपी को तोड़ा गया, जिस तरह से उसके जितनी भी जो लीडरशिप थी, एंटायर लीडरशिप दूसरी पार्टियों में चली गई, एक पार्टी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। तो लेकिन महबूबा मुफ्ती साहबा ने जो पिछले 5 साल में एक स्टैंड लिया, चाहे वो बीजेपी के खिलाफ था या कश्मीर के फेवर में था, उस स्टैंड ने कहीं ना कहीं पार्टी को रिवाइव किया। लेकिन कल के जो नताज हैं वो ये साबित कर रहे हैं कि अभी तक उनका जो पास्ट है, यानी उनका जो अलायंस हुआ था बीजेपी के साथ 2016 में, 2015 में, उसके बाद जो 2016 में, अभी तक लोग उसको बुला नहीं पाए हैं। और वो अभी भी मुफ्ती साहब को हॉन्ट कर रहा है, पीडीपी को हॉन्ट कर रहा है। कि 2 जो बिग टेक अवेज हैं वो ये है कि एक डायनास्टिक पॉलिटिक्स, फैमिलियल पॉलिटिक्स और एरोगेंस ऑफ पावर के खिलाफ भी वोट था, और दूसरा एक नई चर्निंग हुई जिसमें कि
एम्पैथी और एक इमोशन के साथ इसको लड़ा गया, और जो अगस्त 5 की जो तब्दीलियां थी उसके खिलाफ और बीजेपी की प्रॉक्सीज के खिलाफ, सैफरन पार्टीज़ की जो प्रॉक्सीज हैं, चाहे वो अपनी पार्टी हो, चाहे वो DPAP डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव अलायंस हो गुलाम नबी आज़ाद वाली, या पीपल्स कॉन्फ्रेंस की जो सजाद लोन जिस फैक्शन को हेड कर रहे हैं, उन सब के लिए शिकस्त है। और एक नई पॉलिटिकल जो है चर्निंग हुई है, जिसमें कि बहुत सारे फर्स्ट टाइम वोटर्स भी थे। तो एक पॉलिटिकल जो है स्टेटस को के खिलाफ एक रेजिस्टेंस, एक रेजिलियंस का वोट मैं इसे समझता हूँ। जहाँ तक मैसेज की बात है कि लोगों ने क्या पैगाम दिया या लोग क्या पैगाम देना चाहते थे, तो मुझे लगता है एक पैगाम है पॉलिटिकल पार्टीज, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, ख़ास तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए, कि अगर वो एक साथ मुत्तहद न हो जाए, अगर वो कश्मीरियों की फलाह और बहबूद के लिए एक साथ एकजुट काम न करें, तो उनकी जो ज़मीन है, उनकी जो पॉलिटिकल टर्फ है, वो उनके पाँव के नीचे से खिसकती चली जा रही है। इंजीनियर रशीद ने जो कर दिखाया उससे भी साबित हुआ, और हमने देखा अगर जो मुख्तलिफ पार्टियाँ वजूद में आ गई रिसेंटली, जिनको टैग भी लगा कि वो प्रॉक्सी पार्टीज़ है, अगर जो उस लिहाज में कामयाब नहीं रही, लेकिन एक अच्छा खासा वोट उनने भी लिया है। चाहे वो सजाद लोन साहब हैं, पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने 1,60,000 के करीब वोट लिए, या फिर श्रीनगर में अपनी पार्टी के कैंडिडेट थे, या फिर पुलिस राजौरी में अपनी पार्टी के कैंडिडेट थे। तो कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी जो असेंबली सेगमेंट से उनमें उनका अच्छा खासा इम्पैक्ट देखने को मिला। तो अगर ये दो तंजीमें मुत्तहिद न हो जाएं, तो हो सकता है कि उनके हाथ से कहीं बहुत सारे असेंबली सेगमेंट्स कल को उनके हाथ से चले जाएं, और वो